morning, Sarvadan Namaskar, dear student. In today's video, I am going to teach you tense from English language. Before going to start the video, going to start the class, I am going to ask you something, and also mentioning my word in front of you that today in these conditions we are at home, and I hope you would also at your home with your family. It means I want to say that कि इस महामारी के दौर में हम सभी अपने घर पे हैं. ज़रूरत होती है ऑनलाइन क्लास लेने की, तो हम स्कूल आकर अपना क्लास लेते हैं और फिर सेफली अपने घर को चले जाते हैं. उम्मीद करता हूं कि आप सब भी अपने घर पे सुरक्षित और स्वस्थ होंगे. जितना कम हो सके अपने घर से बाहर आएं. कोशिश करें कि अपने घर में ही रहें और इस महामारी से बचें. साथ ही साथ अपने परिवार के सदस्यों को भी बाहर जाने, बिना मतलब के बाहर जाने से रोकें, उन्हें समझाएं, उन्हें बचाएं. After this, I am going to tell you the definition of the tense. What is a tense? You can see on the board by yourself. The tense, it means काल. काल, इसको हम समय भी कह सकते हैं. समय. यहाँ आपको पढ़ना है कि समय को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, कैसे डिनोट किया जाता है, कैसे हम समझ पाते हैं कि कोई काम हो चुका है, होने वाला है, या होगा या होता है. इसी को पहचानने के लिए, इसी को जानने के लिए हमें टेंस की जरूरत पड़ती है. Let us know the definition of the tense. The tense is, here you can see, the tense is a category that express time, and in other words, tenses are shown by using different form of verbs. Here it comes from the Latin word named tempus. Tempus, it means also the word that shows us about time. But in our language, in English language, tempus becomes tense. After the definition, I am going to tell you the different kind of tense. Focus here, please. After the definition of the tense, I am going to tell you or elaborate the kinds of tense. You already know about how many kinds of a tense there is in English grammar. You know, there are three kinds of tense. There are three kinds of tense in English language. I am going to tell you the first one is present tense. The second one, past tense, and the third one is future tense. The first one, present tense, the second one, past tense, and the third one is future tense. And you know also, each of the kind has its four kind. You can see here the thrice of the part of the tense. But you know also, each of the kind has its four kind. Each of the kind has its four kind. I am going to elaborate it one by one. Please focus here, listen to me carefully. Before starting the kinds of the lesson, I am telling you once again that here, tense that classifies two verbs in English language. The one is time and the two is what.
पहला काम होता है इसका टाइम बताना, दूसरा काम होता है इसका वर्क बताना. Let us see how it can tell us the time, how it can tell us the work. Let's see. Tense, it is the time. According, it is the time. Present tense, past tense, and future tense. It is the time. But work, where is the work? I am going to tell you the work about this tense. Here. प्रेजेंट टेंस कि काम को कितने भागों में बांटा गया अकॉर्डिंग टू द टेंस. आपने टाइम को देख लिया कि 3 भागों में बांटा गया. ये टाइम है जो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है. अब देखेंगे कि इस काम को, इस वर्क को कितने पार्ट में बांटा गया अकॉर्डिंग टू द ग्रामर. लुक एट हियर द फर्स्ट वन. आप देख सकते हैं यहाँ इनडेफिनिट. Indefinite tense. You can say also present indefinite tense. Second one, continuous. You can say also present continuous tense. In the third, perfect. Present perfect tense. At the last, present perfect continuous. Present perfect continuous. At the same. Here can be written and here can be also written. Here present indefinite, present continuous, present perfect and even present perfect continuous. The same you can see past indefinite, past continuous, past perfect and past perfect continuous. Same kind, it has same. And in the future you can say future indefinite, future continuous, future perfect, even future perfect continuous. You can write the same kind over there or below there. I am telling that you have known about time of the tense, that there are 3 times. And then after I will explain you, I have explained you about the work. कि वर्क कितने तरह के होते हैं. टेंस में 4 तरह के डियर होते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. मतलब इस काम को 4 भागों में बांट दिया गया. अब जानते हैं कि ये जो 4 काम है, 4 वर्क है, इसको एक सेंटेंस में कैसे पहचाना जाता है. लेट अस फोकस. जानते हैं हाउ द टेंस कैन बी रिकॉग्नाइज्ड इन अ पर्टिकुलर सेंटेंस. लेट अस बिगिन. हियर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, present indefinite tense, present indefinite tense. It means I am going to tell you an example. कि राम स्कूल जाता है. राम स्कूल जाता है. In English, I can translate it that Ram goes to school. राम goes to school. जैसा अभी आपको हमने बताया कि एक काम को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया. एक काम को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड इवन प्रेजेंट कंटिन्यूअस.
तब ये पता करेंगे कि ये जो सेंटेंस है ये किस टेंस से रिलेटेड है, किस टेंस से रिलेटेड। तो आप यहाँ पा सकते हैं कि इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा, मेन वर्ब कौन सा है इस सेंटेंस में। तो पाएंगे दिस इज द वर्ड दैट बिलोंग्स टू मेन वर्ब, दैट बिलोंग्स टू मेन वर्ब, बट इट इज नॉट इन इट्स रूट वर्ड। रूट वर्ड मीन्स इसका रूट वर्ड ये होता है, सिंपल फॉर्म ऑफ द वर्ड इज नोन एज रूट वर्ड। लेकिन ये रूट वर्ड नहीं है, इसमें ये जो es एडेड है। क्यों एडेड है, जानते हैं ये क्यों एडेड है। एक्चुअली क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस shows an action that is a habit, that is a schedule, that is a routine, that is an universal truth too. It means this kind of tense can shows an action that related to our routine, our schedule, our habit, even the natural habit. You can see over the sentence, over the board, the sentence that says जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं रोज खाता हूँ, मैं गाना सुनता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, मैं रात को 10 बजे सोता हूँ। Every sentence that ends with ता हूँ, ती हूँ, ते है, ती है shows that it is our habit. ये जो राम कहता है कि मैं स्कूल जाता हूँ, वो उसका हैबिट कह सकते हैं, उसका रूटीन कह सकते हैं, उसका शेड्यूल कह सकते हैं। और इस तरह के रूटीन को, आदत को, शेड्यूल को, नेचुरल हैबिट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज में हमें इस प्रेजेंट इंडेफिनिट की जरूरत होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट जानते हैं इसके रूल और रेगुलेशंस को। जैसे एक मैथ को बनाने के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, एक रूल होता है, रेगुलेशन होता है, वैसे ही एक पर्टिकुलर हिंदी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए एक रूल रेगुलेशन, जिसको हम स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। जानते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर इस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करने का स्ट्रक्चर आपको माय डियर बता दें। हियर इज द सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस es और s प्लस ऑब्जेक्ट if any there। It is the pattern, it is the structure of the sentence। जाते हैं पॉजिटिव सेंस में। पॉजिटिव सेंस जैसे मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता हूं। Now we have to go according to the pattern to translate this sentence। You can find very easily the sentence that ends with ता हूँ, ते हो, ती है, ती है, ते हैं, etc. is related to an indefinite tense। और indefinite tense से related sentence को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें इस पैटर्न की जरूरत होती है। You can see by yourself that there is a structure and the first one is subject here। Now how can we find the subject in the sentence? Subject, I am going to tell you the definition of subject। Subject it means the part of the sentence that something says or does। मतलब subject का वह पार्ट जो कुछ कहने या कुछ करने का काम करता है। आप कह सकते हैं कि इस सेंटेंस में कौन है जो कुछ कहने या करने का काम कर रहा है। ये तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली काम हो रही है, कौन सी काम? पढ़ने वाली काम हो रही है। और ये काम कौन कर रहा है? मैं कर रहा है।
मतलब ये आपका हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया सब्जेक्ट। अब यहाँ सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट को डाल दिया, जिसको मैं को हम इंग्लिश में आई कह सकते हैं, आई कहते हैं आई। अब आई के साथ है यहाँ पे लगाना है मेन वर्ब, और मेन वर्ब है रीड, पढ़ता है मतलब रीड, रीड, आई रीड। द सेंटेंस इज कंप्लीट, कंप्लीट सेंटेंस। अब बात आती है, क्वेश्चन दिमाग में आपके अराइज हो रहा होगा कि जैसा स्ट्रक्चर हमने लिखा है कि मेन वर्ब होता है और उसके साथ हमें एस और ईएस ऐड करना होता है, बट हमने यहाँ पे किया नहीं। और उसके बाद यहाँ आपने ऑब्जेक्ट भी लिख दिया, ऑब्जेक्ट का यूज किया नहीं। हमने शायद आपको डेफिनेशन बताया होगा, ये स्ट्रक्चर लिखते समय बताया होगा कि इफ एनी देयर इज द पैटर्न to transform an Hindi sentence into English, but generally or occasionally, कभी-कभी एक सेंटेंस में उसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। You can see by yourself that there is no any object in the sentence। मैं पढ़ता हूँ, बट क्या पढ़ता हूँ ये इसने नहीं बताया। अगर ये बता दिया होता कि ये क्या पढ़ता है, then that is the word belongs to ऑब्जेक्ट। लेकिन मैं किताब पढ़ता हूँ, मैं किताब पढ़ता हूँ, मतलब किताब जो वर्ड है ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए हमने कोई ऑब्जेक्ट नहीं डाला। अब बात करते हैं कि एस और यस हमने यहाँ क्यों लगाया। आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा कि एस और यस, मेन वर्ब में एस और यस तभी ऐड करते हैं जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो। वंस अगेन, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर हो। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होना मतलब ही, सी, इट और सिंगल नेम। सिंगल नेम, ये जो आप कुछ सब्जेक्ट या प्रोनाउन देख रहे हैं, ये जब सेंटेंस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, तब इसके मेन वर्ब के साथ हम एस और ईएस ऐड करते हैं। अदरवाइज किसी के साथ करने की जरूरत नहीं होती। आपको एक एग्जांपल देकर मैं बताता हूं। जैसे सीता नाचती है, सीता नाचती है। सीता क्या करती है? नाचती है। आप यहाँ बहुत आसानी से पहचान सकते हैं, दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यू कैन राइट इट सीता एंड देयर आफ्टर नाचती है, इट मीन्स मेन वर्ब। नाचना मीन्स डांस करना, डांस, यू नो, डांस। अब बात आती है यदि ये सीता, सीता जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, जैसा आप हमने यहाँ लिखा, आप देख सकते हैं, एक सिंगल नेम, सॉरी, अ सिंगल नेम इज डिनोटेड एज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। और यहाँ सीता एक नाम है, सीता एक सिंगल नाम है, और इस सिंगल नाम के मेन वर्ब के साथ हमें एस या ईएस ऐड करना होता है। ऑलरेडी ई है, इसलिए हमने यहाँ पे केवल एस। अनदर एग्जांपल, माँ खाना बनाती है, माँ खाना बनाती है। सब्जेक्ट है आपका ये, इसको कह सकते हैं मदर। अब आता है वर्ब, बनाना, खाना नहीं, बनाना वर्ब है। क्या? बनाना, मतलब बनाना, मेक कह सकते हैं, मेक। अब आप यहाँ स्ट्रक्चर देखिए, मेन वर्ब के साथ एस या ईएस ऐड करते हैं, और मदर भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, मदर भी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, एंड दैट इज व्हाई वी हैव टू ऐड एस और ईएस विथ मेन वर्ब। अब यहाँ पे एस ऐड करें। मदर मेक्स, क्या बनाती है? यहाँ ऑब्जेक्ट है, क्या है? ऑब्जेक्ट है। माँ क्या बनाती है? माँ खाना बनाती है, आप इसे ऐड कर सकते हैं, माँ, मदर मेक्स
फूड या मेक्स की जगह आप कुक्स भी डाल सकते हैं। कुक्स, मदर कुक्स फूड और मदर मेक्स फूड। आफ्टर नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव पैटर्न, स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस डू डज, डू और डज प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट इफ एनी। आप यहाँ देख सकते हैं पिछले सेंटेंस, पिछले पैटर्न में ये डू डज नामक वर्ड नहीं। इट मीन्स in affirmative sentence, in positive sentence, we cannot use do or does in the sentence. If we use do or does in affirmative sentence, the sense of the sentence would be changed. That is why we should not use. In negative, in negative, in interrogative, we can use it very easily. देखते हैं इसको कैसे करते हैं। मैं नहीं पढ़ाता हूं। मैं नहीं पढ़ाता हूं। नॉट नहीं लग गया, मतलब दिस सेंटेंस बिलोंग टू नेगेटिव। और नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं यहाँ पर। सबसे पहले क्या डालना होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब आई। अब बात आती है कि सब्जेक्ट के बाद यहाँ डू और डज है। व्हाट वी शुड यूज, डू और डज। आई एम टेलिंग यू, जैसा थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में हमने एस और एस ऐड किया था, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर जिसमें ही, सी, इट या एक सिंगल नाम आता है, तो जब कभी ही, सी, इट या नेम आपको सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट दिखे, आप उसके साथ डज यूज कर सकते हैं। आप उसके साथ डज यूज कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोनाउन सेंटेंस में नहीं दिख रहा है तो आप डू का यूज कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ आई है, तो इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं मतलब हमें डज यूज नहीं करना है। क्या यूज करना है? डू। एंड देन आफ्टर नॉट, आई डू नॉट। अब मेन वर्ब की बारी है। ये मेन वर्ब वन जिसको आप यहाँ देख सकते हैं, पढ़ना, रीड। सॉरी, पढ़ाता हूं मतलब टीच। द सेंटेंस इज कंप्लीट। आई डू नॉट टीच। आई डू नॉट टीच। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई डोंट टीच। आई डोंट टीच। I hope dear you can get the chapter very well. By elaboration of this chapter, I'm stopping my word. In the next video, I will teach you the next part of the present lesson. It means tense का जो बचा हुआ रेस्ट लेसन है वो मैं आपको आगे वाले वीडियो में पढ़ाऊंगा। तब तक आप क्या करेंगे? अपने घर में बैठकर हमारी वीडियोस को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे। जैसा अच्छी तरह से ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्व करने के बाद इफ एनी क्वेश्चन दैट अराइज इनटू योर माइंड, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है रिलेटेड टू माय सब्जेक्ट, you can ask me in the comment section and you will be replied very soon.
In the previous video, I have already requesting you all that please to watch my video on YouTube channel because I am working hard to teach you these days. इस महामारी में, इस बीमारी में भी मैं रोज अपने घर से चलकर स्कूल आता हूँ और आपके लिए क्लास लेता हूँ, वीडियोज बनाता हूँ और इस वीडियोज को YouTube पर अपलोड करने के बाद मैं देखता हूँ कि वहाँ पे बहुत कम व्यूअर है, जबकि 9th-10th के स्टूडेंट को जोड़ ले तो ऑलमोस्ट 250 स्टूडेंट हैं हमारे पास, जिसमें से व्यूअर बहुत कम है। इट मींस लॉट्स ऑफ स्टूडेंट हु आर नॉट वाचिंग माय वीडियो, दे आर वेस्टिंग माय वर्क and their time too. Once again I am requesting, watch my video and even ask your friend to watch the video, and if any question ask in the comment section, sure I will answer. तब तक आप अपने घर पे रहें, सुरक्षित रहें. गुड बाय, सी यू सून.